16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Okay, this is what it is. It is Article 13, 16. It is what? Equal opportunities to the public employment. Equal opportunities to the public employment. ठीक है, Article 16 क्या है? Equal opportunity to the public employment. What it says, every citizen has equal right to get government job or appointment without any discrimination. Okay, when it comes to the government job, then you're going to get that without any discrimination. You're not going to be discriminated on the basis of that, like what kind of government job you want and like this. Yeah, everyone should get a fair chance in the government job. It's not that you should get more chance and that person should get that less chance. So there is an equality of opportunity. Take it like no one should be treated unfairly in public jobs, and everybody should be treated like yeah they are equal. Reservation allowed. Government can reserve jobs for the backward class if they are underrepresented. Okay, if they are underrepresented. Government can reserve jobs for the backward classes if they are underrepresented. Underrepresented. ठीक है, health weaker section get fair representation. Health weaker section to get what? Fair representation. Reservation is allowed. Government can reserve jobs for the backward classes if they are underrepresented. ठीक है, health weaker section get what? Fair representation. Health weaker section to get what? The fair representation. So of course the reservations are allowed and equality in opportunities. Now Champaran Dorai Rajan case challenged the reservation in education institution. But Supreme Court here says like okay, reservation will be but only 50% reservation. Okay, reservation is going to be there, but only 50% of the reservation is going to be there. So it is Champakam Dorai Rajan case 1951 challenged the reservation. Supreme Court said that reservation up to only 50%. Government cannot violate the fundamental rights to implement DPSP. ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि नहीं होता कि मेरे को DPSP को ज़्यादा प्रिविलेज देना है तो मेरे को फंडामेंटल राइट्स से क्या लेनी देनी, तो ऐसा तो नहीं कर सकती है. ठीक है कि नो आप एक को हटा के यू गिविंग इम्पोर्टेंस टू द अदर थिंग. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन. नेक्स्ट, पार्लियामेंट रिस्पॉन्स. Parliament response. ठीक है, passed first Constitutional Amendment Act added 15(4) allowed reservation for the socially and educationally backward classes. So the Parliament response was there that the first Constitutional Amendment was passed and it added 15(4) allowed reservation for socially and economically backward classes. Allowed reservation for whom? So it allowed reservation for socially and economically backward classes. Parliament response. First Constitutional Amendment Act added 15(4) allowed reservation for whom socially and economically backward classes. ठीक है, तो 15(4) ऐड हुआ है, added 15(4). ठीक है, अन्ना काला कालेकर कमीशन का 1955 identified socially and economically backward classes and did not recommend the specific reservation percentage. And you know specific reservation percentage को recommend नहीं करा. They did not recommend like what should be the specific रिजर्वेशन परसेंटेज. ठीक है, जो कि उनको करना चाहिए था. एटलीस्ट इतना तो हमको पता चलता ना कि भाई रिजर्वेशन का क्या परसेंटेज है, बट वो हमको नहीं पता. मंडल कमीशन 1980 रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन इन ओबीसी सेंट्रल जॉब एंड द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, सेंट्रल जॉब हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया. ठीक है, इंदिरा स्वाई केस 1992 क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच ओबीसी कैन नॉट गेट रिजर्वेशन बेनिफिट. 77 Constitution Amendment Act 1995 to 2000 added 16(4) reservation in the promotion for SC and ST. ठीक है, 77 Constitution Amendment Act में 16(4) add and added 16(4) भी
अनफुलफिल्ड वैकेंसीज बैकलॉग केसेस फॉरवर्ड, ठीक है। 16(4) रिजर्वेशन and promotion of SC ST and added also 16B. 103 Constitution Amendment Act 2019 economically reservation, 10% reservation for the weaker section applies to those not in SC ST and OBC. 15(6) का EWS in education and section 6 का EWS in government. 15(5)(6) का EWS education में 15(6) का EWS in government. SC ST varies, ठीक है, अंडर प्रिविलेज. OBC का 27%, क्रीमी लेयर का एक्सक्लूड हुआ, एंड EWS का 10%. Article 16 ensures fairness and equality while also helping the weaker sections through reservation. Abolition of untouchability क्या is completely abolished in India. Any act of untouchability is illegal and punishable, ठीक है. Article 17 में no one can refuse entry into the school, temple और hotel और public places because of your caste, ठीक है. कोई ये नहीं कह सकता नहीं आप नहीं जाओगे, आपका caste is not something that to be done and it never happens. So abolition of titles, ठीक है. Easy version आप देखो, state cannot give titles to the citizens. इसका एक अलग वीडियो have already uploaded. Citizen cannot accept the foreign title. अगर citizen को foreign में जाके कोई टाइटल मिलता है तो आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होगा. नो टाइटल बाय द स्टेट, नो अवार्ड जैसे राजा सर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं. नो टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट अनलेस प्रेसिडेंट अलाउज इट. नो प्रेसिडेंट इनरोलमेंट, ठीक है. यू कैन नॉट बी कॉल्ड सर ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट जस्ट फॉर द वेल्थ और सर्विस. कि आपके पास बहुत, जैसे पहले क्या होता था ना ब्रिटिश ज़माने में, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा सर्विस है, उसको ना लोग कहते थे ओ सर सर सर. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. आप एक ऑनरेबल जॉब कर रहे हो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट पीपल कॉल दैट, ओके. बट ऐसे ऑफिशियली आपके नाम के आगे नहीं लग सकता है. तो 16, 17, 18 क्या है? 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब, इक्वल राइट टू द गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन फॉर SC ST. आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 18 क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल, नो टाइटल फॉर द सिविलियंस, नो फॉरेन टाइटल विदाउट द प्रेसिडेंट परमिशन. विच आर्टिकल गिव अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? 16. कौन सा आर्टिकल अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को? 17. विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स टाइटल फॉर द सिटीजन्स? 18. EWS क्या है? 103. Equality of opportunity का every citizen has right to get what? Government job without discrimination. Reservation SC ST OBC Champakaram Rajan case. First Constitutional Amendment Act 1804 allowed the reservation. Mandal Commission 27% OBC. Indira Sawai case, रिच और ओबीसी रिजर्वेशन. 77 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 16(4)(a) एंड 4(b) को ऐड करा है. रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड बैकलॉग केसेस. 103 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन. 15(6) and 16(6). अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी completely abolished. Ensures caste free society in legal term and promote what? Social equality. Denying entry in the temple, ये सब कुछ नहीं होगा. टाइटल वे है वाला वी हैव ऑलरेडी डन, ताकि इक्वालिटी हो, कोई हिरारकी ना हो. आर्टिकल 19 आप देखो तो 6 फंडामेंटल राइट्स है. 19 to 22 क्या है? आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम. 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है. 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है. आर्टिकल 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है. राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19 to 22. आर्टिकल 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम.
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, पहला क्या है, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर इंसान ना एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, ठीक है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एंड ऑल्सो क्या है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया में फ्रीली घूमना फिरना, ठीक है, टू रिसाइड और सेटल एनी वे हो, एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो SAEF फ्रीली मूव, ठीक है, मूव फ्रीली, ये साम रिप में क्या है, स्पीच, फिर ए क्या है, असेंबल पीसफुली, कहीं पे भी आप असेंबल कर सकते हो, फिर क्या है, फिर आप एसोसिएशन बना सकते हो, पहले आप असेंबल करोगे तभी तो आप एसोसिएशन बनाओगे ना, अब एसोसिएशन बना लिए, एम में क्या है, मूव फ्रीली, एंड RP, right to property was deleted. Now Article 300A. Reasonable restriction, freedom is not absolute. The state can restrict freedom of speech in the spirit of sovereignty, security of the state, friendly relation, public order, decent morality, contempt of health, defamation. Protection in respect of civil offences. Protection in respect of the civil offences. अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड द फॉरेन बोथ, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल कन्वेंशन, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स बोथ, ठीक है, इसमें क्या है, ये दो तरीके के पनिशमेंट को बोलता है, सिविल एंड क्रिमिनल पनिशमेंट, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या अप्लाइज टू द पास्ट, एंड प्रोस्पेक्टिव क्या अप्लाइज टू द फ्यूचर, फ्यूचर में जो भी होगा इट अप्लाइज टू द फ्यूचर, एंड रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, इट अप्लाइज टू द पास्ट, ठीक है। 21 क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है, नो वन कैन बी पनिश फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट अ क्राइम व्हेन कमिटेड, पनिशमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज लेटर, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पनिशमेंट बट कैन नॉट इंक्रीज इट। 21 क्या चीज़ से डील करता है, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ से, कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है, ठीक है, वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, अब आप पास्ट को लेके ये नहीं कर सकते हो ना कि आपने पास्ट में कुछ करा है तो अब आपको उसका पनिशमेंट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ पास्ट में करा है तो पास्ट की बात है, मिट्टी डालो वाली चीज़ है। अब आप लॉ बना रहे हो कि तब था कि मीठा खाना इज़ अ क्राइम, तब अब बन रहा है, अब पहले जिन्होंने मीठा है उनको थोड़ी, है सिगरेट पीना इज़ नॉट अलाउड, पहले जिन्होंने पिया है उनको थोड़ी अंदर डाल देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पार्टी, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अब ऐसा ये घर वाली चीज़ नहीं हो जा रही कि बच्चे गलती करते हैं, माँ भी डांट रहे, बाप भी डांट रहे, टीचर भी डांट रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक बार पनिशमेंट मिल गया, आपने सामने वाले ने चोरी करा, उसको एक पनिशमेंट मिल गया, बस हो गया। Protection from self-incrimination. No person can be forced to give evidence against himself. Selvi versus State of Kerala में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कैन नॉट बी फोर्स्ड। ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट वगैरह के लिए आपको फोर्स किया जाएगा, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ डज नॉट मीन कि बस आप ब्रीथ कर रहे हो, बट लिविंग विथ डिग्निटी। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्रीथिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं वही ज़िंदगी। ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, ज़िंदगी का मतलब थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा। तो आप प्लीज़ ये चीज़ मत सोचना, गलत सलत चीज़ अगर आप सोचोगे तो आपको जो रिजल्ट भी है वो भी गलत मिलेगा। देखो, किसी की भी ज़िंदगी हो, उनको ना डिग्निटी के साथ जीने का हक है, और ये एक ऐसा हक है ना कि आप किसी से भी ना छीन नहीं सकते हो। देखो, लाइफ डज नॉट जस्ट मीन्स ब्रीथिंग, ठीक है, बट इट्स अबाउट लिविंग विथ डिग्निटी। क्योंकि आप सिर्फ सांस ले रहे हो, वो ज़िंदगी कहाँ से होगी। ज़िंदगी तो वो है कि जब आप इज्जत के साथ जी रहे हो। देखो, लाइफ डज नॉट जस्ट मीन्स ब्रीथिंग, बट इट्स अबाउट लिविंग विथ डिग्निटी।
बहुत सारे लोगों को लगता है अरे लाइफ मतलब होता है सांस ले रहा है, वो जिंदगी नहीं है। बट लिविंग विद डिग्निटी इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। वो तो पेड़ भी सांस ले रहा है, लेकिन आप उसको कितना जानदार ट्रीट कर रहे हो वो तो सबको ही पता है पहले से। The telephone tapping passport affects their dignity. Telephone tapping, passport confiscation. Right include right to clean in right to life मतलब क्या होता है, आपको एक क्लीन environment मिले, pollution free मिले, right to privacy, right to free legal aid, right against handcuffing, right to speedy trial, right to travel abroad, right to free and timely medical treatment. Women right to dignity, right against public hanging, right to food, sleep, minimum wages, education, shelter, right to die with dignity and against the noise pollution. नॉइस पोल्यूशन तो एकदम इस चीज़ को रखो। उनमें बहुत सारे लोग को लगता है, अरे बहुत सारे लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो मुंबई वगैरह शहर में रह रहे हैं और वो रो रहे होते हैं कि उनका ना नॉइस पोल्यूशन इतना ज़्यादा उनकी तरफ होता है, इतना ज़्यादा उनकी तरफ होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोग को क्योंकि लगता ही नहीं है कि नॉइस पोल्यूशन भी कोई चीज़ है जिसके लिए आप सवाल उठाओ, जवाब लो। बट ये जो नॉइस पोल्यूशन जैसी जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अफ़ेक्ट करती है। जब ये अफ़ेक्ट करने पे आती है तो मिनिमम वेजेस आपको चाहिए। राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। कीपिंग फॉरेनर प्रिजनर्स इन जेल आफ्टर सेंटेंस इज ओवर, ये वॉयलेशन है। ठीक है, फॉरेन प्रिजनर्स जो भी हैं, अगर उनका जेल जाने का समय जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है तो आप उनको जेल में नहीं रख सकते हो। A person can be deprived of life or liberty only by a legal procedure. Procedure established by law, ये यूके का है। If procedure is followed, law, अगर procedure is followed, law is valid, fairness not checked earlier. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? यहाँ ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फेयरनेस वगैरह को चेक किया जाता है। ये आर्टिकल 21 में ही आ रहा है। ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या है? फंडामेंटल राइट ट्रीटेड एज सेपरेट and any law passed by the legislative was valid. Maneka Gandhi 1978. 14 1921 क्या है? इंटरकनेक्टेड है। प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है, एक्सपैंड करना जुडिशियल रिव्यू। मेड आर्टिकल 21 द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल कन्फर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल कैन बी कन्फर्ड बाय द स्टेट डॉक्टर? एनी सिटीजन एक्सेप्टिंग अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री वायलेट्स 18(2). 18(2). 18(2). नेक्स्ट इज हम्म Article 18(2). Any citizen violates a title from foreign states, then 18(2). A government servant can accept gifts from a foreign state only with the permission of President of India. How many freedoms are guaranteed under 1916? How many freedoms are guaranteed under 1916? अब क्या नेक्स्ट क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी इम्पोज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट इकोनॉमिक इनक्वालिटी। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आर्टिकल 20 is available to both citizen and the foreigner.
punishing a person under a law passed by the state was committed to violate what? 21. The principle of double jeopardy 22. Forcing any accused to give evidence against himself is 23. Narco analysis and polygraph test without consent were banned by Selvi versus State of Karnataka. Article 21, right to personal liberty. Life means what? Life with dignity. Maneka Gandhi case. Next is, which of the following is not included in Article 21? Right to title. Now, which concept of Maneka Gandhi में क्या था? Procedure established by the law. Keeping a prisoner in jail after complete sentence violates Article 21. Procedure established by law. A law is valid if a proper legal procedure is followed. If the legislative follows a constitutional procedure, the law is valid. This is a UK concept कि एक legal procedure is followed, the law is valid. अब बाकी जो अच्छा है बुरा है इससे इसको कुछ मतलब नहीं है. But due process of law is what? Not just the procedure, but law also must be fair, just, reasonable, moral. This is a US concept. तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. तो कब पास हुआ? 1950. तो मे बी द क्वेश्चन कैन आस्क यू टू अरेंज. ओके, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 was challenged and petitioner said it violates 1921 and 22. Supreme Court held procedure established by law is enough and fairness not required. Fairness is not required. ठीक है, but fundamental rights were treated as separate. Due process was rejected here. तो एक गोपालन केस 950 में क्या हुआ? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 950 का वो चैलेंज हुआ. ठीक है, पहली चीज पिटिशनर जो भी पिटिशन फाइल किए थे उन्होंने कहा था कि इट इज वायलेटिंग 1921 and 22. ठीक है, 1921 एंड 22 जो है ये वॉयलेट कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज इनफ, फेयरनेस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो फंडामेंटल राइट्स वर ट्रीटेड सेपरेट. यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट को सेपरेट ही ट्रीट किया गया था. ड्यू प्रोसेस यहाँ पे रिजेक्ट हो गया. अब मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 978. Passport was confiscated under Passport Act 1967. Supreme Court held procedure must be fair, just and reasonable. ऐसा नहीं किसी का भी कुछ भी कर दो जाके. तो 14, 19 and 21 are connected. तो इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. एंड आर्टिकल 21 एक्सपैंडेड राइट टू प्राइवेसी. प्राइवेसी मीन्स राइट टू बी लेफ्ट अलोन. ठीक है, राइट टू बी लेफ्ट अलोन. ठीक है, राइट टू प्राइवेसी. तो राइट टू प्राइवेसी कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. राइट टू प्राइवेसी इज समथिंग वेर यू हैव द राइट टू बी लेफ्ट अलोन. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर टाइम देखो, हर टाइम यू कैन नॉट बी प्लीजिंग पीपल अराउंड यू, और हर टाइम यू कैन नॉट बी वट यू आर नॉट. देखो प्रिवेसी क्या है? राइट टू बी लेफ्ट अलोन व्हेन यू नीड सम टाइम विथ योरसेल्फ, लाइक मे बी द हीलिंग टाइम. तो it is a kind of freedom from unnecessary interference and where you gain your bodily integrity, personal autonomy, and also a kind of protection from surveillance. Next, important cases. MP Sharma versus Satish Chandra 1954. MP Sharma वर्सेस सतीश चंद्र 950. कोर्ट वारंट के सर्च वारंट को चैलेंज किया गया. नो राइट टू प्राइवेसी. MP शर्मा कोर्ट ने कहा कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में क्या हुआ? सर्च वारंट को चैलेंज किया गया क्योंकि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र वाले केस में ना पुलिस जाके घर जा के खोज रही थी कुछ. तो कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ में तो आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगा. अब कल को अगर आपके घर में कोई कुछ ऐसा क्या कहते हैं कुछ इलीगल सामान रखा हुआ है एंड देन यू विल बी सेइंग दैट नो आई हैव द राइट टू प्राइवेसी, इट्स माय फंडामेंटल राइट्स. तो इन दैट केस इट्स नॉट गोइंग टू बी वैलिड. तो खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पुलिस सर्विलेंस चैलेंज. कोर्ट रिजेक्टेड प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट. एंड बाद में क्या हो? प्राइवेसी नॉट रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, बट यहाँ पे प्राइवेसी कोर्ट रिजेक्टेड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू violate it. So Putta Swami versus Union of India Aadhaar card scheme was challenged here. 9-judge bench. Right to privacy is a fundamental right and it is a part of Article 21. Section 377. Criminalize same-sex relation. ठीक है, homosexuality. नास फाउंडेशन 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने लीगलाइज करा था होमोसेक्सुअलिटी को. नास फाउंडेशन 2009 में सुरेश कुमार कौशल रिवर्स्ड द डिसीजन, लेकिन 2013 में सुरेश कुमार कौशल ने इस चीज़ को रिवर्स कर. तो
नास फाउंडेशन ने एक्सेप्ट कर दिया था। सुरेश कुमार 2013 में रिवर्स करा। दफ्तेज सिंह जो डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्राइवेसी। सारे लोगों को लगता है अरे लाइफ मतलब होता है सांस। Article 21A. Right to education, free and compulsory education for children 6 से 14 साल, only elementary education added by 86 amendment, ठीक है, Constitutional Amendment Act 2002, and it has been added by 86 Constitutional Amendment Act 2002. तो right to education, free and compulsory education 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, only elementary education. The 20 and 21 cannot be suspended during the emergency. Now next is what? Protection against arrest and detention. Punitive custody is after trial. पर्सन इज पनिश्ड आफ्टर द कन्विक्शन, लाइक आफ्टर यू आपने कुछ गलत कर दिया तो बाद में। प्रिवेंटिव है कि आप इतना कुछ हो जैसे आप टेररिस्ट जैसा सस्पेक्ट किए जा रहे हो, तो इन दैट केस यू आर अरेस्टेड टू प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम हैपनिंग. तो हियर देयर इज डिटेंशन विदाउट ट्रेल. Purpose is preventive, not the punishment. Can be arrested on suspicion. 22(1) arrested person must be informed of a reason and be allowed to consult a lawyer. 22(1) में ठीक है reason दो and उनको एक right दो so that they can consult a lawyer. But it is not applicable to enemy aliens. अब enemy आके नहीं, preventive detention cases में भी ये applicable नहीं है. Article 22(2) arrested person must be produced within before a magistrate 24 घंटे के अंदर एंड कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर विदाउट द मैजिस्ट्रेट परमिशन. ठीक है, देखो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास, लॉ डीएम के पास, उसके बाद 24 घंटे के बाद जब आप ले आते हो तो उसके बाद और जो 24 घंटा है वो आप नहीं डालोगे उनको, क्योंकि आप एक तरीके का वो होता है. आर्टिकल 21 क्लॉज डू नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस. ट्वेंटी टू फोर क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 3 महीने से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं कर. 22(3) क्या है? क्लाउज 1 and 2 डू नॉट अप्लाई टू द एनिमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस. 22(4) क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 3 महीने से ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा. ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा क्या है वो एक्सटेंड नहीं करेगा. देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है क्लाउज 1 and 2 नहीं अप्लाई होता है एंड एनिमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में है. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 3 महीना से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल एडवाइजरी बोर्ड. ये क्या है? 3 महीना वाली चीज़ है, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड का यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए. तो यहाँ पे आपको किसका परमिशन चाहिए? तो यू नीड द परमिशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, हियर यू नीड हुज परमिशन? तो यू नीड द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यू नीड द परमिशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. यहाँ पे यू नीड द परमिशन ऑफ, ठीक है, बट हुज परमिशन यू नीड? तो यू नीड द परमिशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. हियर यू नीड द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, 3 महीने से 44 अमेंडमेंट एक्ट ट्राई टू रिड्यूस इट 2 मंथ. ठीक है, एंड 44 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सोचा कि एक काम करता हूँ इसको ना 2 मंथ कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ ना हो नहीं पाया. ठीक है, 2 महीना वाली चीज़ जो थी वो हो नहीं पाई. ठीक है, 2 महीना वाली जो चीज़ करना तो था बट वो चीज़ जो थी वो हो नहीं पाई. ठीक है, 2 महीना वाली जो चीज़ थी ना वो नहीं हो पाई. 22(5) क्या है?
ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। अब तो ठीक है, आप कह तो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप जो भी ग्राउंड पे आप जो भी आप किसी को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो कर दो ना कि आपका किस ग्राउंड पे किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहने में बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, बट ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एंड डिटेनी मस्ट गेट अ चांस टू मेक रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा ना हो कि फालतू में किसी को अरेस्ट किया गया हो, तो डिटेनी को 22(5) के अंदर उनको एक चांस मिल पाए कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए क्या कर पाए, वो खड़े हो पाए। ठीक है, तो डिटेनी को एक चांस दो ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए वो क्या हो पाए, तो वो खड़े हो पाए। 22(7) पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड डिटेन। देखो अब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सटेंड कर सकता है 3 मंथ या तो उससे ज़्यादा के लिए। एंड फिक्स डिटेंशन पीरियड, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड को भी फिक्स कर सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में आता है, जहाँ पे हाउस अरेस्ट जो था 1 साल तक का था, रिपील हो गया 1969 में, ये रिपील हो गया। ठीक है, हाउस अरेस्ट था कितने साल के, 950 में, 1 साल के लिए, 1969 में ये हो गया। यूएपीए अमेंडेड 967, amended to 4/8/12/19, 4/8/12/19. Article 21 life with dignity, Manika Gandhi due process, and Putta Swami क्या है, privacy and fundamental rights. आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या है, बोथ सिटीजन एंड द फॉरेनर। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, लॉ मस्ट फॉलो अ प्रॉपर गाइडेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर वाज स्टैब्लिश्ड फ्रॉम यूके। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर वाज स्टैब्लिश्ड फ्रॉम द यूके। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर वाज स्टैब्लिश्ड फ्रॉम द यूके। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंश्योर्स लॉ इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। लॉ इज व्हाट, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। लॉ क्या है, लॉ इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। विच कास्ट केस रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनिशियली, तो ए के गोपालन। विच केस इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मनिका गांधी। इन विच case 14, 19 and 21 were held to be interconnected, Manika Gandhi. Right to privacy was declared in fundamental right, Putta Swami, 9 judge bench case. 327 क्या है, criminalize the same sex relation. Homosexuality was finally decriminalized in Navjit Singh Johar case. Navjit Singh Johar case relied heavily on right to privacy. 21A, free and compulsory education. 2017 judgment established the right to privacy as a fundamental right under Article 21. This ruling directly enabled the Article 21A was added in 86th Amendment Act. Article 22 deals with arrest and detention safeguard. Which custody is detention without the trial? ठीक है, detention without the trial क्या है, preventive detention, aims to prevent the future crime. Under Article 22(2), an arrested person must be protected before a magistrate before 24 hours. 21 and 22(2) ये enemy aliens and preventive detention cases पे apply नहीं करता. Maximum period of the preventive detention without advisory board approval is 3 months. Which amendment tried to reduce preventive detention in 2 months? 44. Ground of preventive detention must be communicated under 22(5). Which case is preventive detention law is still in force? UAPA 1967. Which fundamental right cannot be suspended during emergency? 2021. MISA, Maintenance of Intersecurity Act, allowed detention for maximum period. Article 22 में है 21 month. ठीक है, MISA, Maintenance of Internal Security Act, and 1977 में ये abolish हुआ. कोफपोसा एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 974. तो ऑर्जल पीरियड क्या था, 1 साल. द डिटेंशन पीरियड ऑफ द कोमपोसा क्या था, 44 कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. 1980s imposed in when for unity, integrity and sovereignty. Detention period under NSA cannot clearly specified. TADA allowed preventive detention up to 180 months. TADA was abolished in 1955. POTA detention without filing charges was allowed to 10 months. POTA was repealed in 2004. Which of the following is not able to enemy alien 21 and 22? Right against exploitation 23-24. ठीक है, इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग. फोर्स लेबर क्या है, वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन. ठीक है, वर्किंग बिलो मिनिमम वेज ड्यू टू पॉवर्टी इज फोर्स्ड लेबर. विच एक्ट वाज इनैक्टेड टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इट इज इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956. देवदासी is an example of human trafficking system. Now, which act abolished bonded labor act? Bonded Labor Abolition Act 1976.
23 to allow the state to compel military or social service for the पब्लिक पर्पस 24 बी 24 क्या है 14 साल तक के बच्चों के लिए हजारियस इंडस्ट्रीज में काम बना था चाइल्ड लेबर 1986 एक्ट हुआ था इनएक्ट ठीक है तो इन 2006 द गवर्नमेंट बैन चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट एंड होटल वर्कर्स वायलेशन ऑफ 23 इज पनिशेबल ऑफेंस Now 21 क्या है for protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except the procedure established by the law. Except what? Except the procedure established by law. No person shall be deprived of life or personal liberty except the procedure established by law. It applies to the citizens and non-citizens and it is also available even during emergency. ठीक है emergency वाले जो situation में भी ये available है. Meaning of life and personal liberty does not mean कि animal existence है. It include ठीक है देखो राइट टू लाइफ एक ऐसा चीज़ है अगर आप खुद सोचोगे तो ये इमरजेंसी वगैरह में भी एप्लीकेबल है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है. प्रोसीजर established by law law must be made by the legislative and proper legislative legal procedure है. फेयरनेस से कोई मतलब नहीं है. प्रोसीजर फेयरनेस ये सब से कोई मतलब नहीं है. MP Sharma case 924 privacy is not considered as a fundamental right. MP Sharma केस में क्या था तो privacy is not considered as a fundamental right. MP Sharma केस 924 प्राइवेसी नॉट कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट. खरक सिंह में क्या है सर्विलियंस की बात हुई थी 1962 में. खरक सिंह सर्विलियंस ठीक है. MP शर्मा 954 प्राइवेसी नॉट कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट एंड खरक सिंह 962 सर्विलियंस. पुट्टा स्वामी 960 2017 ठीक है. 9 जजमेंट राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 21. प्रिवेंटिव डिटेंशन 950 में था. ये 1 साल का था. ये 1969 में अबॉलिश हुआ. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 950 में आया 1 साल का था और ये 1969 में अबॉलिश हुआ. 1969 में अबॉलिश हुआ. अब मीसा 1971 में आया 21 मंथ का था. 1977 में ये भी अबॉलिश हो गया. कुफ ये 1974 में था 2 साल का था और ये अभी भी एक्टिव है. ठीक है. NSA जो है वो कब आया था वो स्पेसिफाई नहीं किया गया कितने साल के लिए आया था और वो अभी भी 1980 में आया था. अभी भी एक्टिव है. टाटा 1985 में आया था 90 दिन नहीं 180 दिन के लिए आया था और वो अबॉलिश हो गया है. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 951 ईयर अबॉलिश्ड 1969 अबॉलिश्ड 1969 अबॉलिश्ड 1969. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 950 क्या में आया था ये 1969. मीसा क्या है 1971 21 मंथ अबॉलिश इन 1977 ठीक है. मीसा क्या है 1971 21 मंथ के लिए आया था. 21 मंथ के लिए आया था. अबॉलिश हुआ है 1977 में. मीसा क्या 971 में आया था. 21 मंथ के लिए आया था और अबॉलिश हुआ था 1977 में. अबॉलिश हुआ है 1977 में.
1971 में आके 1977 में अबॉलिश हुआ मीसा। कोफ पोसा 1974 में आया था। कोफ पोसा 2 साल के लिए आया था, अभी भी एक्टिव है 1974 में। इनसे 1980 में आया था। टाडा 1985। पोटा 2002 10 दिन के लिए आया था। सोचो पोटा सिर्फ 10 दिन के लिए आया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर बिगर स्लेवरी। फोर्स लेबर क्या है? वर्क विदाउट पेमेंट। इंक्लूड करता है वर्क बिलो द मिनिमम वेज सिस्टम। लॉ टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन का मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट 1978 एंड इक्वल वेज एक्ट 1976। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976। बॉन्डेड लेबर एक्ट क्या था? लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 एंड इक्वल वेज एक्ट 1976। सेक्शन का 23(2) कंपलसरी सर्विस का, तो मिलिट्री या सोशल सर्विस का है। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रन बिलो 14 साल एंड कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज वगैरह। रिलेटेड लॉ क्या है? फैक्ट्री 948, माइट एक्ट 952 एंड चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। Children, 6 children banned from working as domestic servant and hotel and dhabas. 2021 cannot be suspended during emergency. Article 21 is the heart of the fundamental right. Preventive detention refers to the power of the state to detain person without trial or formal change in order to prevent him from committing a future act. ठीक है, दैट में थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी। अनलाइक प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन, इट इज प्रिवेंटिव नॉट प्यूनिटिव। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 के अंदर ग्राउंड क्या है? सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज के लिए, एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज के मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज को, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड डिफेंस ऑफ द फॉरेन ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ security of the state, maintenance of the public order, maintenance of the essential supplies and defense or foreign affairs of India, defense foreign affairs of India, maintenance of supply security and maintenance of public order. कोटा 2002 में आया था, 10 दिन के लिए आया था और अब वो अबॉलिश हो गया। टाटा 1985 में आया था, अब 180 दिन के लिए आया था, वो अबॉलिश हो गया है। टाटा 1985 180 दिन के लिए आया था, वो अबॉलिश हो गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 में आया, 1 साल के लिए आया था। 1969 में अबॉलिश हुआ था। मीसा 1971 में आया था, 21 महीना के लिए अबॉलिश हो गया 1977 में। कोफ पोसा क्या 974 42 ईयर्स के लिए एक्टिव है।